Namaskar, all of you. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. Stay healthy, stay safe, and be happy, okay? So, from today, we are going to solve textbook exercise of chapter 6 Living and Non Living Things on page number 65. Okay, let's understand. Exercise 1 Objective type questions. Exercise A Fill in the blanks with the correct words. First one is a bird moves with the help of blank. There are options. There are two options. First one is wings and second one is fins. So a blank is a bird moves with the help of, यानी बर्ड है वो किसकी हेल्प से मूव करता है, चल फिर सकता है, किसकी हेल्प से. तो वी हैव टू ऑप्शंस, विंग्स एंड फिन्स. तो बर्ड किसकी हेल्प से मूव करता है? ऑफ कोर्स इट्स विंग्स. सो वी हैव टू टेक विंग्स एंड राइट डाउन इन अ blank. So please keep it in your mind. You have to write down with your pencil, not with your pen, and handwriting should be very neat and clean. Okay, see the spelling of given options and write correctly. Done. Second one is a fish moves with the help of blank. Options are wings and fins. सो फिश है वो किससे मूव करती है? आप लोगों ने देखा होगा फिन्स मूव फिशेस मूव्स विद द हेल्प ऑफ fins. Okay, so tick the fins and write down in a blank. Third one is leaves of the blank close up when touched. यानी when we touch the leaf of some plant, of any plant, तो वो टच हो जाता है. तो वो कौन सा प्लांट है? सो here is a options mimosa and lotus. So which one is correct one? Correct one is mimosa. When we touch mimosa's leaves, they are क्लोज अप, है ना, वो क्लोज हो जाते हैं. तो टिक द मिमोसा एंड राइट डाउन इन अ ब्लैंक. फोर्थ वन इज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स इन देयर ब्लैंक. यानी प्लांट्स है वो ब्रीथ करते हैं, दे नीड एयर टू ब्रीथ. तो हाउ डू दे ब्रीथ? दे ब्रीथ थ्रू टीनी हॉल्स. पर वो टीनी हॉल्स कहाँ पे होते हैं? लीव्स में होते हैं या फ्लावर्स में होते हैं? देर आर टू ऑप्शंस, फ्लावर्स एंड लीव्स. सो करेक्ट वन इज लीव्स. आई शो यू ना when I explain that in a leaf there is a teeny holes. They are helping plants to breathe. So we have to write down leaves in this blank and tick the leaves. Fifth one is blank feel changes around them. यानी कौन है जो उनके आजू बाजू चेंजेस है वो फील कर पाता है? कुछ चेंजेस हुए, वेदर चेंज हुआ, गर्मी लगी, ठंडी लगी, तो वो कैन फील द चेंज. तो ऑप्शंस आर ओनली एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स ही कर सकते हैं. एंड सेकेंड ऑप्शंस एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो राइट वन इज एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकॉज प्लांट्स ऑल्सो feel the changes. So you have to write down and tick down animals and plants in this blank. Okay, now exercise B, choose the correct options. There are 4 options in one question. You have to choose correct one and tick that one. Okay, first one is why do living things need food? Why do
लिविंग थिंग्स नीड फूड, उन्हें फूड क्यों चाहिए, वाई? तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए टू वर्क, ऑप्शन बी टू मूव एंड ऑप्शन सी टू ग्रो, ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, यानी सारे के सारे जो है वो करेक्ट वन है. तो वी हैव टू टेक ऑप्शन डी बिकॉज वी नीड फूड, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू वर्क, टू मूव एंड टू ग्रो ऑल्सो, है ना. तो ये तीनों जो है वो राइट वन है. सो वी हैव टू टेक ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. अगर ऑप्शन सारे जो है वो सही होते हैं तो हमें ये ऑप्शन टिक करना होता है. ओके, नाउ सी द सेकेंड वन. Which of these organs help animals to feel changes around them? इसमें से कौन से ऑर्गन्स है जो एनिमल्स को हमारी आजू बाजू कुछ चेंजेस हो रहे हैं या एनिमल्स को कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो दे कैन फील द चेंजेस. तो ऑप्शन ए सेंस ऑर्गन्स, ऑप्शन बी एंटीना, ऑप्शन सी fins and wings and option D both A and B. तो organs help animals to feel changes. Animals के पास कौन से organs होते हैं? Sense organs, है ना. When I explained, I told you there are five sense organs: eye, nose, ear, tongue and skin. There are 5 sense organ which help us to feel the changes around us. Okay, so we have to take option A here. Question number 3. Which of the following is not a sense organ? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेंस ऑर्गन नहीं है? तो ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी टंग, ऑप्शन सी लेग एंड ऑप्शन डी ईयर. अभी मैंने आपको 5 सेंस ऑर्गन्स बताए है ना, उसमें लेग आया था? नो, बिकॉज लेग इज नॉट अ सेंस ऑर्गन. सो वी हैव टू टिक ऑप्शन सी लेग हियर. नाउ सी द फोर्थ वन. विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स डू नॉट ले एग्स but give birth to a baby? यानी इसमें से कौन सी लिविंग थिंग्स है जो क्या करते हैं, एग्स नहीं देते बट सीधे बेबी को जन्म देते हैं? तो वो कौन से लिविंग थिंग्स है? तो ऑप्शन ए पिजन, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी वुमन एंड ऑप्शन डी हैन. तो एज यू नो पिजन के क्या होते हैं, एग्स होते हैं. प्लांट्स के भी जो होते हैं सीड्स होते हैं ना, या रूट्स या फिर लीव्स, उससे प्लांट्स पैदा होते हैं. एंड ऑप्शन सी इज द राइट वन. वुमन गिव अ बर्थ टू अ बेबी, है ना. वो एग्स नहीं देती, वो क्या करती है, शी give birth to a baby. So tick the option C because hen is a wrong one. hen भी क्या देती है, eggs देती है ना. Now see the fifth one. The leaves of which plant close up when touched? यानी हम कौन से प्लांट को टच करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मिमोसा, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी ऑल ग्रीन लीव्स एंड ऑप्शन डी मैंगो. तो एज वी ऑल नो मिमोसा इज अ प्लांट which when we touched they are close up. So tick the option A mimosa. Now see the sixth one. What helps insects to breathe? इंसेक्ट्स को ब्रीथ करने के लिए कौन हेल्प करता है? तो ऑप्शन ए लंग्स, नो दे डिडंट हैव लंग्स. ऑप्शन बी एयर होल्स, यस ऑप्शन बी इज राइट वन. एयर होल्स से जैसे कि कॉकरोचेस है, फ्लाइज है, उनके पास
क्या होते हैं? एयर होल्स होते हैं जिससे दे कैन ब्रीथ. ऑप्शन सी नोज नहीं होता, गिल्स भी नहीं होते. डन. गिल्स किसके पास होते हैं और वो किससे सांस लेते हैं? फिश breathe through gills. Okay, now see the seventh one. Which of the following animals is not a bird? इसमें से कौन सा एनिमल है जो बर्ड नहीं है? ऑप्शन ए हॉर्स, ऑप्शन बी pigeon, ऑप्शन सी पैरट, ऑप्शन डी क्रो. तो क्रो, पैरट एंड pigeon आर बर्ड्स, है ना. सो हॉर्स इज अ एनिमल. So tick the option A here. Now see the eighth one. Which of the following living things do not go in search of their food? यानी इसमें से कौन सी लिविंग थिंग है जिन्हें फूड के लिए कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ता, फूड को ढूंढने नहीं जाना पड़ता. दे कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन. वो खुद से ही अपना फूड बनाते हैं. तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बियर, ऑप्शन बी स्क्विरल, ऑप्शन सी मंकी एंड ऑप्शन डी प्लांट. तो एज वी ऑल नो, वी ऑल एनिमल्स हैव टू मूव अराउंड एंड go around in a search of a food. We all need food, but only plants are those they can make their food by their own. So take the option D here. Ninth one is, by which process do living things produce more of their own kind? यानी वो कौन सी प्रोसेस है जिससे, वो कौन सी प्रोसेस होती है जिससे लिविंग थिंग्स है वो अपने ही जैसा जो है उसे जन्म देते हैं. तो ऑप्शन ए डाइजेशन, ऑप्शन बी ब्रीथिंग, ऑप्शन सी हेयरिंग एंड ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन. तो जो प्रोड्यूस करते हैं, है ना, अपने ही जैसा, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं. उसे ब्रीथ करना नहीं बोलते, रॉन्ग. उसे हियरिंग भी नहीं बोलते और उसे डाइजेशन भी नहीं बोलते. उसे क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. अपने ही जैसा, अपने ही तरह का जो है उसे जन्म देना, उसे पैदा करना. ओके, उसे क्या बोलेंगे हम? रिप्रोडक्शन. डन. जो पोटैटो है, अगर हम पोटैटो को ग्रो करना चाहते हैं तो हम टोमेटो के जो सीड्स है वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, है ना. सॉइल में हम क्या डालेंगे? पोटैटो डालेंगे, तो ही वो पोटैटो निकलेगा, है ना. तो अपने ही तरह का जो हमें प्रोडक्ट चाहिए तो हमें उसे हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे. डन. नाउ turn the page number 66. Exercise 2, very short answer type questions. यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है. ऑप्शन ए, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. हियर यू हैव टू वन वर्ड आंसर. ऑप्शन ए, थिंग्स दैट मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील चेंजेस एंड रिप्रोड्यूस. उसे हम कौन सी थिंग बोलेंगे? इट्स सो ईजी, इट्स लिविंग थिंग्स, है ना. सो राइट डाउन लिविंग थिंग्स इन अ फर्स्ट रो. सेकेंड वन इज पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट हेल्प्स इट टू ब्रीथ. प्लांट का एक पार्ट है जो हमें ब्रीथ करने, हमें नहीं, प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करता है. तो इट्स स्टिमेटा, है ना. तो राइट डाउन इन अ सेकेंड रो. थर्ड वन इज पार्ट ऑफ एन इंसेक्ट दैट हेल्प्स इट टू फील चेंजेस अराउंड इट. उनके आजू बाजू जो चेंजेस हो रहे हैं उसे फील करने में कौन हेल्प करता है इंसेक्ट्स को? इट्स एंटीना. एज यू गाइज सी, कॉकरोचेस आपने देखे हो या बटरफ्लाइज,
तो उनकी जो मूछे जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं ना, ग्रास ऊपर देखा हो, तो वो होते हैं एंटीना, जिससे दे कैन फील द चेंजेस अराउंड देम. ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज बी. गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे दिए हुए पांचों के 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं. डन. फर्स्ट वन है हाउ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. प्लांट्स है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उनके आजू बाजू के चेंजेस को. टच एंड लाइट, है ना. ऐसे हम एग्जाम्पल दे तो वो किससे आजू बाजू के चेंजेस फील करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं. टच से और लाइट से. टच से कौन सा प्लांट हमें रिस्पॉन्ड देता है, इट्स मिमोसा. एंड लाइट से कौन सा प्लांट है रिस्पॉन्ड देता है, इट्स सनफ्लावर, है ना. तो राइट डाउन टच एंड लाइट इन अ फर्स्ट वन. सेकेंड वन, एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडी. एयर होल से जो एनिमल्स है वो ब्रीथ करते हैं, उनके 2 नाम लिखने हैं. तो अभी मैंने आपको बोला था इट्स कॉकरोच and it's butterfly. Okay, write down in a second one. You have to write down 2 examples of each. Third one, animals that have antenna. Animals है जिनके एंटीना होते हैं. तो एंटीना किसके होते हैं, इट्स कॉकरोच एंड आंट. आंट के भी एंटीना होते हैं जिससे दे कैन फील अराउंड चेंजेस. ओके, write down with a pencil and with a very good handwriting. Okay, fourth one, non-living things that can move. Non-living things है जो move कर सकती है. They can move place to place, but बाकी कुछ नहीं कर सकती. और move करने के लिए भी कोई चाहिए, है ना. हम move करते हैं, we need driver to move vehicles. All vehicles, है ना, all vehicles move place to place, but they need someone to drive it, है ना. पर they can move. तो ये कौन कौन है, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स. तो आप देखो ट्रेन में भी ड्राइवर होते हैं एंड एरोप्लेन्स में भी क्या होते हैं, दे आर पायलट्स, है ना. दे आर फ्लाइंग अवर एरोप्लेन्स. सो राइट डाउन ट्रेन एंड एरोप्लेन्स, बट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, but they can move. Fifth one, plants that give rise to new plants with the help of their roots. Roots से कौन से प्लांट है जो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इट्स अ कैरेट एंड पोटैटो. मैंने आपको दिखाया था कैरेट के अगर हम जो नीचे का पार्ट है, जो रूट है, उसे हम तोड़ के पानी में उल्टा रखे तो क्या होंगे, वो ग्रो होंगे. या फिर पूरे का पूरा कैरेट ही हम अंदर डाल देंगे ना, तो पूरा वो ऊपर से उसका प्लांट है वो ग्रो अप होगा. मैंने आपको एक्सप्लेन करा था तब दिखाया था, है ना. पोटैटो भी ऐसे ही है. जब हम जो बिगड़े हुए पोटैटो है या जो पोटैटो है जिससे हम रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, वो हम अगर सॉइल में डालेंगे तो बहुत सारे पोटैटोज़ नीचे पैदा होंगे, है ना. तो राइट डाउन कैरेट एंड पोटैटो हियर. नाउ skip this, answer the following question. Skip this one. This exercise 3 will write down in a fair notebook. Okay. Now see, let's recall. Recall and complete the concept map given below. We have concept map here. We have to complete it. Okay. First one है living things and second thing है non-living things. So here we have to write down difference between living things and non-living things. Okay. So one is done for us. First one है living things grow. Non-living things do not grow. Second one is living things move on their own. Living things can move on their own. वो खुद से move करते हैं ना, by their legs, by their wings, by their fins, है ना. But
नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. वो खुद से मूव नहीं करते. वी हैव टू मूव देम, है ना. टेबल, चेयर, बुक. सो दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स. वी हैव टू मूव देम. Third one is need air to breathe. We need air to breathe. All living things need air to breathe. We need air to breathe with the help of nose, है ना. और प्लांट्स है वो किससे ब्रीथ करते हैं? स्टोमेटा, है ना. एयर होल से कौन करता है? इंसेक्ट्स करते हैं. तो दे कैन ब्रीथ बट दे नीड एयर टू ब्रीथ. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. वो ब्रीथ ही नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी थिंग, एनी सेंस ऑर्गन टू ब्रीथ, है ना. नेक्स्ट वन इज नीड फूड टू ग्रो. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. वो ग्रो होते हैं, वो बढ़ते हैं. तो बढ़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए? दे नीड फूड. उन्हें खाना चाहिए, है ना. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. उन्हें फूड नहीं चाहिए. कभी देखा है नॉन लिविंग थिंग्स को खाना खाते हुए? टेबल, चेयर, बुक्स को, बैग, है ना. नो, दे डू नॉट नीड फूड. नेक्स्ट वन इज फील चेंजेस. लिविंग थिंग्स फील चेंजेस. वो फील चेंज करते हैं, यानी चेंजेस को फील करते हैं. यानी कभी वेदर चेंज हुआ, किसी ने आपको छुआ, या फिर इंसेक्ट बाइट करा, तो भी हमें चेंजेस है हमारे आजू बाजू वो फील होते हैं ना. बट non-living things do not feel changes. They can feel anything because they do not have any sense organ. Last one, living things reproduce. Living things है वो reproduction देती है अपने ही तरह का. They can reproduct kind of their own. वो खुद के ही जैसा जो है वो reproduce करते हैं, है ना. तो उसे क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स. बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. दे कांट, है ना. चेयर में से कभी देखा है छोटी छोटी चेयर आई, छोटी छोटी टेबल्स निकले, छोटी छोटी बुक्स निकली? नो. सो नॉन लिविंग थिंग्स do not reproduce. Okay, so these are the textbook exercises you have to write down in textbook only with very good handwriting and with your pencil. Stay healthy, stay safe.